Hello student. Now our next topic in today's video is production possibility curve. This is the next topic that is also known as PPC. So in today's video students, we will first see the definition of this PPC, then we will see the assumptions, and then after that we will see the diagram, that is curve of PPC. So let's start our today's video of production possibility curve. So students, first of all, just look at the definition. What does the definition specifies? It is an alternative combination of production of two goods from the given resources and technology. Now what is the meaning of this? It is an alternative combination का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरीके के दो कॉम्बिनेशन, ठीक है? मतलब किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है. In the earlier video we have seen how to produce, what to produce, problem of central economy. So the same thing, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कौन से दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है. सो वी हैव टू प्रोड्यूस टू गुड्स, ठीक है, विद द गिवन रिसोर्सेज. सी द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज with the given resources and technology. Means we have to do the production of two goods, ठीक है. PPC का मतलब we have to do the production of two goods but with the given resources and technology. Understood the meaning of this definition? With the given resources and technology is the main part over here. It means our available resources are what? Constant. This I already told you in my earlier video that the resources what we have are constant and are given. Means resources हमारे limited हैं, unlimited नहीं हैं. By mistake earlier video में मैंने एक जगह सेंट्रल प्रॉब्लम्स में बोल दिया था कि resources are unlimited. That was by mistake I told students. So I want to correct myself. Once again I am telling our resources are given and constant. So with that resources only we have to do the production of how many goods? Two goods. Means we have to choose the combination. जैसे हम लोग दो चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, मान लो व्हीट का हो गया और क्लॉथ का हो गया, तो व्हीट और क्लॉथ में से दोनों का प्रोडक्शन वी हैव टू डू, बट वी हैव टू डू द कॉम्बिनेशन. मतलब इसका करेंगे तो उसका कम हो जाएगा. सो दैट वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज वीडियो. गेटिंग इट चिल्ड्रन? सो व्हाट वी हैव टू डू, मतलब उन रिसोर्सेज को लेके ही अलग अलग प्रोडक्शन हमें करनी है, ठीक है. So in our earlier video we saw what to produce. Remember that in central problems of economy. If you have not gone through the video, please see that video first. मतलब कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें? प्रोड्यूसर गुड्स. ये था ना व्हाट टू प्रोड्यूस में. दोनों में किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है ये याद होगा तुम लोगों को. तो हमें किसका कितना प्रोडक्शन करना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस PPC, ठीक है. सो इसी में डिसाइड करेंगे. बट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज दैट स्टूडेंट्स आवर रिसोर्सेज शुड बी फुल्ली यूटिलाइज्ड. यहाँ पे PPC में क्या ध्यान रखना है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसमें से एक भी रिसोर्सेज बचना नहीं चाहिए. वो सारे रिसोर्सेज वी हैव टू यूज इट कम्प्लीटली. कोई भी रिसोर्सेज लेफ्ट ओवर नहीं होना चाहिए. ओके, सो व्हाट इज PPC? PPC इज एन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स from the given resources and technology. So this was about the PPC. Now see students, there are some other names of this PPC. So means it is called by many names. First name is, it is known as PPC, that is production possibility curve. Then it is known as PPF. What is this PPF? Production possibility frontier. Then it is also known as transformation curve. And then it is also known as transformation boundary. But we will remember this PPC. But you should know the names of the same thing, how many times, means how many types it is being called. Now students, let us see the assumptions. Now first of all you must be wondering what is the meaning of this assumption. Let me make you clear. Now in economics subject, whenever we will study any law or any theory we will study, in that case सबसे पहले हम लोग definition पढ़ेंगे, then we will study the assumption and then we will draw the diagram. ये इकोनॉमिक्स में हमें याद रखना है. क्या याद रखना है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी थियोरी जब हम पढ़ेंगे, whenever we will study any law also further in this chapter or in the other chapters, first we will study the definition, then we will study the assumptions and then we will study the diagram. So first of all today only I want to make you sure what is the meaning of assumption. assumption का इकोनॉमिक्स का मीनिंग में, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में क्या मीनिंग है देखो. सी देर आर सम थिंग्स विच आर कॉन्स्टेंट. कुछ चीज़ें हमें इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट रखनी पड़ती है. मतलब कभी भी किसी भी आइटम की प्राइस जो है
एट अ पर्टिकुलर टाइम इट विल नॉट चेंज, और अगर प्राइस चेंज होती भी है तो फ्रीक्वेंटली उसके डिमांड में भी चेंज आ जाएगा। ये चीज़ को समझ लो, हमेशा एक टाइम गैप होता है, एंड बिकॉज ऑफ टाइम गैप समटाइम्स इकोनॉमिक के रूल्स भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। सो टू इम्प्लीमेंट दोज रूल्स वी हैव टू टेक व्हाट, एजम्पशंस। ओके, एजम्पशंस मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। आई होप नाउ you might have understood the meaning. Now see children, now see the definition once again. It is an alternative combination of production of two goods. ठीक है, now see we are getting first assumption from our definition only. क्या है हमारा first assumption? Resources are given. एक बार फिर से definition देखो, it is an alternative combination of production of two goods फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। गेटिंग इट, यहाँ पे दिया हुआ ना रिसोर्सेज गिवन है, मतलब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है, दे आर फिक्स, दे आर गिवन। सो द फर्स्ट अजम्पशन इज व्हाट, अवर रिसोर्सेज आर गिवन। आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ दो गुड्स करना है, लेकिन कैसे करना है, सिर्फ गिवन रिसोर्सेज से। हमें कांस्टेंट किसको रखना है, गिवन रिसोर्सेज को रखना है, और किसको रखेंगे हम लोग कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी को भी हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। सो अवर फर्स्ट असम्पशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द डेफिनेशन इटसेल्फ। क्या है फर्स्ट असम्पशन, ऑल ऑफ यू रीड आउट, रिसोर्सेज आर कांस्टेंट। अब जो होंगे वो कांस्टेंट ही होंगे। नेक्स्ट जस्ट सी, टेक्नोलॉजी भी क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी मस्ट ऑल्सो बी कांस्टेंट। सेकेंड असम्पशन हमारा क्या है, टेक्नोलॉजी मस्ट बी कांस्टेंट। सेम थिंग, जैसे रिसोर्सेज कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कांस्टेंट। नाउ व्हाई इफ आवर टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस, समझो अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई या फिर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, देन व्हाट विल हैपन, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, देन वी विल डू मोर प्रोडक्शन। तो इसका मतलब पीपीसी बनाने में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब तुम लोग सोचो कि मैम व्हाट इज दिस पीपीसी, देखो जस्ट सी, लुक एट दिस डायग्राम। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू सी, लुक एट दिस डायग्राम। ये जो कर्व है, ठीक है, ये कर्व हमारा है पीपीसी, और इस कर्व में जो होता है, इस कर्व ये डिनोट करता है कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं। वंस अगेन आई एम टेलिंग, just look at this diagram. In economics throughout the year we will be studying this type of diagrams only. See, here we have got x and y. In x what we are doing, we are doing the production of good x, and here we are doing the production of good y. good x में assume कर लो कि हम लोग wheat का production करते हैं, और good y में assume that we are doing production of cloth. और ये क्या है, ये कर्व जो है ये हमारा पीपीसी कर्व कहलाता है। दिस कर्व इज नोन एज व्हाट, पीपीसी कर्व। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब पीपीसी कर्व में क्या शो होता है कि ये जो लाइन है, इस लाइन का ये मतलब होता है कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, मीन्स हाउ मच रिसोर्सेज वी हैव। सो दैट्स व्हाई वंस अगेन आई एम सेइंग, इफ आवर टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस या फिर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीजेस, देन व्हाट विल हैपन, ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देन वी विल डू मोर प्रोडक्शन। तो पीपीसी बनाने में हमको क्या आ जाएगी, इस कर्व को बनाने में वी विल गेट लिटिल बिट प्रॉब्लम। तो यहाँ बनाया है या आगे और भी बनाएंगे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वी विल टेक दिस। सो व्हाट वी विल टेक, आवर रिसोर्सेज इज कांस्टेंट एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कांस्टेंट। नाउ सी अवर थर्ड एंड फाइनल assumption. What is the third final assumption? Alternative comparison between two goods. Now what is the meaning of this alternative comparison? See the definition. It is an alternative combination of two goods. अब समझो तुम लोग, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का यहाँ पे मीनिंग क्या आता है, डायग्राम में देखो। ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स मतलब हाउ मेनी गुड्स वी हैव टू टेक। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू वी हैव टू टेक ओनली टू गुड्स। इन द डेफिनेशन ऑल्सो आई टोल्ड यू वी हैव टू टेक और वी हैव टू टेक ओनली टू गुड्स। टेक एन एग्जाम्पल, गुड एक्स या फिर गुड वाई। अपार्ट फ्रॉम दिस आई टोल्ड यू कैन ऑल्सो टेक वॉट मीन्स यू कैन ऑल्सो टेक गुड एक्स में मान लो वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, और गुड वाई में एज्यूम करो कि क्लॉथ का प्रोडक्शन हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू डोंट हैव टू टेक एनी अदर गुड्स। ओके, ध्यान रखो, वी हैव टू टेक ओनली टू गुड्स। टेक एनीथिंग, से आई टोल्ड यू जैसे वीट ले लो चाहे क्लॉथ ले लो, बट यू कैन नॉट टेक मोर देन टू गुड्स। सो टेक वॉट एवर यू वॉन्ट। सो दिस आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा मतलब वीट और क्लॉथ ही लेना है। वॉट एवर थिंग्स यू वॉन्ट
you can take production of gun or you can take the production of any other thing. मतलब alternative combination, मतलब इस चीज को कैसे यूज करेंगे, फिर इसको यूज करना है. Any example you can take. So this is all about definition and assumption. I hope definition और assumption आप लोगों को समझ में आ गया हो गया. Now students, let us see this curve. What is this curve? PPC curve कैसे बनता है? See, ये हमारा PPC curve हो गया है, ठीक है. गुड X और गुड Y, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है? प्रोडक्शन. किसके बीच में? इन दोनों के, गुड X और गुड V के बीच में वी हैव टू डू द प्रोडक्शन. और ये दिस इज द लाइन. व्हाट दिस लाइन शोज? ये जो हमारी लाइन है ये PPC की लाइन है. इट शोज व्हाट? इट शोज हाउ मच रिसोर्सेज वी हैव. मीन्स हमारे पास खर्चा करने के लिए कितने रिसोर्सेज हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम करो कि हमारे पास एक्सपेंडिचर करने के लिए 10 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है. एज्यूम करो कि हमारे पास एक्सपेंडिचर करने के लिए 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है. मतलब 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू डू द प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स. जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे वी विल डू द प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स. विच गुड्स? व्हीट एंड क्लॉथ. सो हमारी ये जो लाइन है, ठीक है, वी हैव टू डू द प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स. यहाँ मान लो क्लॉथ है और इस लाइन में मान लो व्हीट है. सो हमारी ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? PPC लाइन. व्हाट इट विल शो? इट विल शो व्हाट कि इस लाइन के सारे पॉइंट्स जो है क्या शो कर रहे हैं. व्हाट इट विल शो कि इस लाइन के सारे पॉइंट्स क्या शो करेंगे. इसका मतलब 10 लाख में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे. इट मीन्स व्हाट? इसी 10 लाख रुपीज में हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज इन दोनों में डिफरेंस क्या है. मतलब डिफरेंस बस इतना सा है कि ये देखो, ये गुड X है और ये गुड Y है. डिफरेंस बस इतना सा है कि ये देखो. आई होप यू आर एबल टू सी. लेट मी चेंज दिस. आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू सी. डिफरेंस बस ये है कि ये X है. कौन सा X है? सी स्टूडेंट्स, ठीक है. दिस इज व्हाट? दिस इज, एज्यूम करो कि ये प्रोडक्शन किसका है? X चीज का है. इतना सा है कि ये X है. ये वाला पार्ट हमारा X हो गया है. देखो ध्यान से, ये पार्ट हमारा क्या हो गया है? X हो गया है, ठीक है. एंड दिस लार्जर पार्ट इज व्हाट? दिस लार्जर पार्ट इज व्हाट? इट इज Y, ठीक है. ये X हो गया और ये दिस लार्जर पार्ट इज व्हाट? हमारा Y हो गया. तो हम Y के प्रोडक्शन में ही क्लॉथ का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग? Y के प्रोडक्शन में हम लोग क्लॉथ का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, यानी X, ठीक है, या मतलब ज्यादा कर रहे हैं. और X यानी क्या है? व्हीट का प्रोडक्शन. ध्यान से सुनो, X यानी क्या है? यहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं. यहाँ पे देखो, व्हीट का प्रोडक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं. सो ओनली दिस मच इज द डिफरेंस. यहाँ पे भी फुल 10 लाख रुपीज खर्च हो रहे हैं बिकॉज वी हैव द इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच? वी हैव द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज. एंड हियर ऑल्सो फुल 10 लाख रुपीज इज वी आर यूजिंग. देखो जैसे हाँ, मतलब यहां से लेके यहां तक वी आर यूजिंग फुल आवर 10 lakhs रुपीज इन्वेस्टमेंट. एंड हियर इफ यू बिगिन द डिफरेंसेस, देखो यहाँ पे मान लो हम लोग X का प्रोडक्शन कर रहे हैं. फिर से सुनो एक बार, ठीक है. यहाँ पे ये हमारा X हो गया, ठीक है. ये छोटा वाला पार्ट क्या हो गया? नाउ दिस इज आवर स्मॉलर पार्ट इज व्हाट? इट इज आवर X हो गया. और ये बड़ा वाला पूरा पार्ट क्या हो गया? Y. तो हम Y के प्रोडक्शन में ही क्लॉथ का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं. समझ में आ रही है ना? ठीक है. और X यानी क्या हो गया? हमारा व्हीट का प्रोडक्शन कम हो रहा है. हम लोग अगर X को मानेंगे, देखो X छोटा हो गया ना यहाँ पे, इसका मतलब हम लोग व्हीट का प्रोडक्शन इस पॉइंट पे, ठीक है, एट दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट, एट दिस पॉइंट वी आर डूइंग दिस मच प्रोडक्शन, ठीक है. सो ओनली दिस मच इज द डिफरेंस हियर. यहाँ पे फुल 10 lakhs देखो खर्च हो जाएंगे, पूरे 10 lakhs हमें खर्च कर देना है, ठीक है. सो द डिफरेंस इज दिस. इस पॉइंट पे X का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, ठीक है. यहाँ पे X का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, ठीक है. और Y का प्रोडक्शन क्या हो गया है? कम हो गया है. देखो ये लास्ट पॉइंट देखो, सी दिस पॉइंट इज व्हाट? इस पॉइंट पे X का प्रोडक्शन ज्यादा है और Y का प्रोडक्शन क्या हो गया? कम हो गया.
नाउ सी, यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग y मानेंगे लास्ट पॉइंट पे. व्हेन वी कम टू द लास्ट पॉइंट वी विल टेक व्हाट कि यहाँ पे x का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है और y का प्रोडक्शन कम हो गया है. यानी हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, सी हियर इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे वी आर डूइंग मोर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. यहाँ पे x ज़्यादा है ना, x ज़्यादा है मतलब क्या, हियर वी आर डूइंग मोर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड लेस प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ. समझ में आई? फिर से बता दो, ठीक है, एक बार फिर से सुन लो. देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनो. इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, x का प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है, और y का प्रोडक्शन कम हो गया. यानी इस पॉइंट पे वी आर डूइंग व्हाट, मोर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड लेस प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ. ठीक है, आ गया समझ में? सेम वही पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ पे पूरे हमें 10 लाख रुपीस को यूज करना है. ठीक है, सेम वही पॉइंट है. 10 लाख यहाँ पे भी खर्च कर रहे हैं हम लोग और 10 लाख हम लोग यहाँ पे भी खर्च कर रहे हैं. क्यों 10 लाख खर्च कर रहे हैं? बिकॉज इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू दैट वी आर डूइंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच, वी आर डूइंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज. द डिफरेंस इज व्हाट, प्रोडक्शन की कंपैरिजन. ठीक है, जो प्रोडक्शन की कंपैरिजन है जो हमें डेफिनेशन में बता रही है, क्या डेफिनेशन में बता रही है, इट इज शोइंग नो दैट इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स. तो सेम थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग यू ओवर हियर. अगर x का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो y का प्रोडक्शन कम करेंगे. यहाँ पे y का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो x का प्रोडक्शन, ये देखो x छोटा हो गया ना, तो x का प्रोडक्शन कम करेंगे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. द डिफरेंस इज प्रोडक्शन की कंपैरिजन, जो हम लोग डेफिनेशन में देख लो ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन की बात करते हैं. यहाँ पे कुछ और कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे कुछ और कॉम्बिनेशन है. गेटिंग इट स्टूडेंट्स? सो व्हाट आवर पीपीसी विल शो, आवर पीपीसी विल शो व्हाट, it is going to show alternative combination of production of two goods. मतलब उसका resources क्या है. See, ये हमारा resources है, this PPC curve is what, ये हमारे resources है. Line of PPC always shows how much resources we have. हमेशा याद रखो, ये जो PPC की लाइन है it will always show what, कि हमारे पास resources कितने हैं. जैसे मैंने बताया अभी हमारे पास 10 लाख रुपीज़ है तो हमने 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया. So this line will always show what resources we have. Now see students, what we saw, you all understood about this PPC curve. What are its assumptions समझ में आ गया, इसका definition भी समझ में आ गया, and और इसको कैसे बनाते हैं. Now see, one more topic we will see. Now see, this is our PPC all about. Here इस PPC पे क्या होता है ना, बहुत सारे points भी होते हैं. Just look at the next diagram. ये देखो, सी दिस इज ऑल्सो PPC ओनली, आई हैव ड्रॉन इट फॉर यू बिफोर ओनली. नाउ सी, इस PPC पे क्या तुम लोग देख पा रहे हो, कैन यू सी वेरियस पॉइंट्स आई हैव प्लेस्ड ऑन द PPC स्टूडेंट्स. हियर वी आर हैविंग डिफरेंट पॉइंट्स. इनका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो. सी वी टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज पॉइंट्स ऑन PPC के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं. ये देखो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं और व्हाट दिस पॉइंट्स शो दैट वी विल सी. सो जस्ट नाउ वी सॉ PPC की ये जो लाइन है, अभी हमने अर्लियर पहले ये देखा कि ये PPC की क्या है, ये लाइन है. व्हाट डज इट लाइन शोज, दिस लाइन शोज हाउ मच रिसोर्सेज वी हैव, और वो सारे रिसोर्सेज हमने पूरे यूज किए हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, याद रखो स्टूडेंट्स. व्हाट दिस लाइन शोज हाउ मच रिसोर्सेज वी हैव, एंड जितने भी रिसोर्सेज हैं हमने सारे पूरे यूटिलाइज कर लिए हैं. मीन्स पूरा 10 लाख रुपीज़ हमने खर्चा कर लिया है. नथिंग इज बीन लेफ्ट. किस लिए खर्चा किया है, वी आर डूइंग फॉर प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमने पूरी तरीके से यूज़ कर लिया है. ठीक है ना, वेदर इट इज़ पॉइंट ए, देखो ठीक है, वेदर इट इज़ पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट डी और पॉइंट एफ. मतलब PPC लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, ऑल ऑफ यू जस्ट सी how many points we are having on this PPC. Point A, point B, point D and point F. Means I am using all the 4 points efficiently, wisely. I am utilizing all these points. इसका मतलब क्या हुआ, एक का जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे तब हम लोग क्या कर रहे थे, now just now tell me, ऐसे मैंने बताया था ना, वी वर डूइंग प्रोडक्शन X हम लोग कम कर रहे थे और प्रोडक्शन Y हम लोग ज़्यादा कर रहे थे. ठीक है, तो थोड़ा सा जब B पे आ जाओगे तो थोड़ा सा X का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, Y का प्रोडक्शन क्या हो गया, थोड़ा और कम हो गया. सेम जब यहाँ पे हम लोग D की बात करेंगे तो व्हेन D व्हाट हैपेंड,
वी वर डूइंग प्रोडक्शन ऑफ एक्स ओवर हियर एंड प्रोडक्शन ऑफ वाई ओवर हियर. फाइनली जब हम यहाँ पे एफ पे आते हैं, व्हाट वी वर डूइंग, यहाँ पे हम लोग एक्स का प्रोडक्शन क्या कर रहे थे, ज़्यादा कर रहे थे. व्हाट वी वर डूइंग, ये गुड एक्स है ना, व्हीट का प्रोडक्शन वी वर डूइंग मोर, और वाई का प्रोडक्शन वी वर डूइंग लेस. समझ में आ गया? ठीक है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स, व्हाट एल्स कैन यू सी इन द डायग्राम? जस्ट सी. कैन यू सी टू मोर पॉइंट्स स्टूडेंट्स? दिस इज पॉइंट ई एंड दिस इज पॉइंट सी. दिखाई दे रहा है? Apart from this points A, B, D, E, you can also see point E and point C. Example, देखो, suppose if we have our resources कितने हैं, हमारे पास resources कितने हैं, it means वो monetary term में है. जैसे मैंने earlier example में आप लोगों को बताया कि हमारे पास resources कितने का था, 10 लाख रुपीज़ का था. monetary terms में है, मतलब उसकी monetary term क्या है. monetary terms means अगर हम लोग उसको if we count in money, then it will be as our resources. Just now I told you no, in the earlier example that we have an investment, we have to do an investment of how much rupees? Of 10 lakh resources, 10 lakh rupees. So that resources assume करो कि we have 10 lakhs rupees. Now we have to do the production of two goods, wheat and cloth, within that 10 lakh only. So this line, what this line will represent students? This will represent points A to F is our line. A to F क्या है? इस A to F जो है, this is our line. It will represent that जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो उस लाइन में ही यूज़ कर रहा है. मतलब उस लाइन में जितने रिसोर्सेज हैं उसी को हमको रखते हुए यूज़ करना है. ठीक है, 10 lakhs के अंदर, मतलब फुल मनी विल बी यूटिलाइज्ड. एक भी पॉइंट नहीं एक्स्ट्रा बचना चाहिए. ठीक है, सारे पॉइंट्स यूज हो जाने चाहिए. ऑल रिसोर्सेज वी आर यूजिंग फुल्ली. Now apart from this you have point C and you also have point E. What does this show? It will show that जो resources use हुए हैं वो less than 10 lakhs है. अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, point C कहाँ पर है? ये हमारा PPC curve है. ठीक है, this is our PPC curve. Point C इसके अंदर है. अंदर है का मतलब हमेशा याद रखो, I am telling this for the first time and last time. Many times we will be using this meaning. Point PPC is under PPC, मतलब point C is under PPC. इसका मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं 10 लाख रुपीज़ के वो पूरी तरीके से यूज़ हुए नहीं हैं. यहाँ पे कोई पॉइंट का क्या मतलब होता है कि वी हैव नॉट यूटिलाइज्ड ऑल अवर रिसोर्सेज. जैसे मैंने बताया था ना, 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, उसमें फर्स्ट सी पॉइंट पे क्या शो करता है कि हमने खाली 5 लाख रुपीज़ यूज़ किया है. ठीक है, बिकॉज दिस पॉइंट इज अंडर सी. पॉइंट सी शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. आया समझ में? वॉट इज दिस पॉइंट सी शोइंग? इट इज शोइंग दैट वी हैव नॉट यूज्ड फुल 10 लाख रुपीज. वी हैव अज्यूम करो कि वी हैव यूज्ड ओनली 5 लाख रुपीज. इट मीन्स स्टिल हमारे पास 5 लाख रुपीज बचे हुए हैं ताकि हम और प्रोडक्शन कर लेंगे. ठीक है, इफ आई वॉन्ट, अगर मैं चाहूँ तो मैं और आगे इस लाइन को बढ़ा सकती हूँ. सो सी क्या शो कर रहा है? सी इज शोइंग व्हाट? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. I hope students this point C is clear to you. I didn't use all my resources. Point C का मतलब क्या होता है? हमने हमारा सारा resources use नहीं किया है. ठीक है. Now see another point. Which is the another point over here? This point E. What does this point E shows? ये हमारी कैपेसिटी से भी बाहर जा रहा है. मतलब कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया? ये हमारी कैपेसिटी थी ना, ये लाइन हमारी क्या थी? कैपेसिटी थी. दिस इज अवर पीपीसी कर्व. मतलब हमारे रिसोर्सेज कितने थे? सिर्फ 10 लाख रुपीज़ के ही हमको यूज़ करना था. बट पॉइंट ई का मतलब क्या होता है कि वी आर यूजिंग समथिंग मोर देन 10 लैक्स. अब मोर देन 10 लैक्स तो कैसे यूज़ करोगे जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही 10 लाख रुपीज़ का है? तो हम ज़्यादा कैसे यूज़ करेंगे? तुम लोग सोच रहे होंगे. बट एज्यूम करो कि यू हैव ओनली 10 लाख रुपीज़ विथ यू. ठीक है, उस 10 लैक्स में तुम्हें बिजनेस करना है. और एक और बात तुम्हारे दिमाग में चल रही है. What is going on in your mind? That you are planning to set up a showroom of what? BMW car. 10 lakhs rupees you have only with you and you are planning कि नहीं, I am going to set up a new showroom of BMW car. Is it possible students? No. So less amount. क्या 10 लाख रुपए में तुम लोग BMW कार का शोरूम डाल सकते हो क्या? नहीं. कम से कम 100 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तुम्हारे पास. Then only you will be able to do. So this point E shows what? Beyond our resources. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये देखो, पॉइंट ई शोज नॉन feasible region. Non-feasible region means
which is not in our limit. Our limit was how much? It was of only 10 lakhs rupees. But we are planning to use more than 10 lakhs rupees, but we don't have. हमारे पास है नहीं. But assume करो, ठीक है. So E is known as what? This point E is known as non-feasible region. It means beyond our capacity. हमारी capacity के बाहर है. It is not in our capacity. So once again remember what this line represents, children. हमारे resources कितने हैं. So whenever any change occurs in this line, अगर इस line में कभी भी कोई change आता है तो क्या हो जाएंगे? ध्यान से सुनो. Whenever any change will occur in this line, what it will show? It will show कि हमारे resources या तो increase हो गए हैं या फिर क्या हो गए हैं? Decrease हो गए. हमेशा याद रखो. Whenever there is a change in PPC, you will assume that either our resources are increasing or our resources are decreasing. मतलब हमारे resources कम हो गए. So once again see all the points. Point A, B, D and F. What these shows? They are the remaining points which shows that they are fully utilized. See, I am written over here. Rest all the points shows what? Full utilization of resources. Getting it, students? What this shows? It shows that it is showing full utilization of resources. ठीक है? Point C and E also what they are showing? Underutilization, and point E non-feasible region. I hope it is clear to you, students. In our next video what we will study? We will study another topic, that is shift and rotation of PPC. Okay? Thank you for watching.